what if I told you all the numbers you studied since class 1 are the family of big numbers? Let's explore all the universe of number system. Hello and welcome to Vidya Jyoti Academy. I am Shankar sir, your maths teacher. So from today onwards, we are going to start maths educational series for 9th standard. So let us start with the very first chapter, number system. चलो आप लोगों ने तो बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे इसके रिगार्डिंग, बट मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग वे में लेके जा रहा हूं विथ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. सो यू नो द नंबर सिस्टम इज नथिंग बट इट्स अ counting the numbers, understanding the numbers, measurement of numbers, so many things are there. We'll have some real life examples so that you can understand in better way. So let us start. So if I tell you to count the numbers, definitely you will start with the 1. तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Naturally they are called natural numbers because you are counting with the number 1. Naturally आप 1 से start करते हो तो इसको natural number बोलेंगे. If nothing is there in your hand, nothing is there with you, that means 0. नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं मतलब 0 है, तो इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर. और इसको आपको पता है ये W से डिनोट करते, नेचुरल नंबर N से डिनोट करेंगे. और इफ नेगेटिव नंबर्स आर देयर, लाइक फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर्स में हम लोग बोलते हैं कि बिलो जीरो, बिलो एवरेज मतलब बिलो जीरो मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है. नेगेटिव नंबर में आप क्या बोलते हैं? टेम्परेचर -2 डिग्री आप देखते होंगे श्रीनगर में, और बहुत सारे बिलो सी लेवल होता है वो माइनस में मेजर करते हैं. दीज आर आल्सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर Z. डू यू नो व्हाई दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय Z? Because these numbers are invented by the person and mathematician, his name is Zerlin. Okay, so let's have more interesting facts about the numbers. Okay, so let us take one example here. If you are 3 members and you are ordering pizza and it has total 4 parts. For example, ये 4 parts का है. If you want to take one part out of 4, so then how can you write in the form of numbers? Yes, definitely you can write in this way. 1 by total how many parts? 4 parts. Yes, congratulations. So that means you understood the topic of rational number. So if a number is written in P upon Q form where P and Q are integers, it is called rational numbers. Okay, so where it is denoted by letter Q. Do you know the reason why it is denoted by letter Q? Because all the rational numbers are also called quotient number. The first letter of quotient is letter Q. I hope you understood this. चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल 5/10 है. एक एग्जांपल लिया, एक चेक करो एक बार. आपको लग रहा होगा कि ये रैशनल नंबर है. नो, दिस इज नॉट द रैशनल नंबर. तो मे बी रैशनल नंबर, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ रैशनल नंबर, मे बी रैशनल नंबर बिकॉज क्योंकि जब तक ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं आता है आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रैशनल नंबर है. पहले आपको ये डिवाइड करके बताना पड़ेगा. 5 1 जा 5 2 जा डिवाइड हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो 1/2 अभी ये रैशनल नंबर हो गया. तो अगर वापस इसको भी सिंप्लीफाई करते हो 1/2 तो क्या मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स डेसिमल नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये कोशेंट मिलेगा डिवाइड करने के बाद. इसके लिए तो इसको Q से डिनोट करते हैं. ऑल दीज नंबर्स आर कोशेंट नंबर्स. तो डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 0.5. ये हो गया डेसिमल नंबर. दैट मीन्स व्हाट? These rational numbers are also called decimal numbers, but in decimal numbers again we have some types. So let us understand more about decimal expansion of rational numbers as well as irrational numbers. So let me take one more example here. Right, like for example 3/5. 3/5. तो इसका डेसिमल नंबर बताओ मुझे क्या आएगा? तो कमेंट में बताओ मुझे क्या इसका आंसर मिलेगा. यस, डेफिनेटली क्या मिलेगा, क्योंकि 3/5 इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. राइट, रैशनल नंबर है बिकॉज P अपन Q में लिखा है. एंड यू नो दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं. क्या रीजन है इसका? बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया P रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q में, और इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q एंड P and Q आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों नहीं होना चाहिए? इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए. नहीं आया तो दैट मीन्स डोंट मग अप द थिंग्स, डोंट बाय द थिंग्स. ओके, Q इज नॉट इक्वल टू 0. रीजन क्या है इसका?
रीजन ये है, वेरी सिंपल है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, एक पिज्जा का एग्जांपल दिया, ये पार्ट है ओल है, ओल जीरो हो सकता है क्या? नहीं होता है। अगर जीरो होगा तो पार्ट कैसे लेंगे? अगर पिज्जा आपके पास पिज्जा नहीं है, आप पार्ट कैसे खाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसके लिए ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज द रीजन। कभी कभी डेफिनेशन में आता है रैशनल नंबर इज द नंबर विच इज रिटन इन p upon q where p and q are integers but q is not equal to 0 and you should know the reason q 0 नहीं होना चाहिए। Why q is not equal to 0? This is the reason, क्योंकि होल में कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये पार्ट है, पार्ट जीरो हो सकता है लेकिन होल जीरो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने हमेशा बोला कि ये 5 हो सकता है ग्रेटर देन 0 है, बट कभी कभी 0 आ गया तो यू हैव टू थिंक, सो एंड इट कैन बी रिटन एज नॉट डिफाइंड। अगर 0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट हियर। 3 upon 5, व्हाट इज द आंसर? 0.6. Okay, and the type of decimal is terminating decimal number. That means in decimal expansion we have two types. Decimal expansion we have two types. One is terminating and other is non-terminating. And these are rational number only. ये rational number का ये फॉर्म है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये देखो, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? खत्म हो गया, एंड हो गया, मतलब डेसिमल नंबर एंड हो गया, आगे नहीं आने वाला है। अगर समझो एक और एग्जांपल लिया मैंने, लाइक 1/3, एक एग्जांपल ले लो 1/3, तो इसका डेसिमल नंबर क्या रहेगा? अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.333 एंड सो ऑन, कंटिन्यू होते जाएगा। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। देखो, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एक और है यहाँ पे। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, यहाँ पे वापस इसमें टू टाइप्स आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसको एक और नाम से बोलते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको एक और नाम से बोलेंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो, रिकरिंग मतलब वही सेम डिजिट वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं हम लोग 0.3 बार। बार का मतलब ये होता है सेम नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब देखो, रैशनल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स हैव टू टाइप्स। टर्मिनेटिंग मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 0.6, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, यहाँ पे टू टाइप्स आएंगे, एक रिकरिंग यानी रिपीटिंग, ये नंबर है, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। लेकिन आगे एक और है इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा, तो इसका क्या रहेगा डेसिमल नंबर? अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 1.732 एंड सो ऑन। चेक कर लेना एक बार। तो कितना भी इसको डिवाइड करो या सॉल्व करो, लेकिन ये वाला डेसिमल नंबर कभी एंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। So the special case of this decimal expansion is non-terminating and non-recurring number is called irrational number. So अभी next number system है, तो irrational, that means already explained, no, non-terminating and non-recurring, it is called irrational number. तो irrational number के बारे में देखो, more actually concept क्या है इसमें, most important concept क्या है? So irrational numbers are denoted by letter I, right? I. Why they are denoted by I? Because irrational number first letter is I, and these √3, √5, √6, all these are also called surds. सर्ड्स के कॉन्सेप्ट मैं तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अगर आप कोई भी नंबर है, देखो ये वाला नंबर है, इसका भी है, इसका डेसिमल नंबर अगर आप फाइंड करेंगे ना, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है, वापस रिपीट भी नहीं होगा, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। एंड इर्रेशनल नंबर्स नेवर बी रिटन इन p upon q फॉर्म। डू यू नो व्हाई?
बिकॉज ये देखो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर आप इरेशनल नंबर देखेंगे √2 लिखेंगे, √2/1, ये √2 क्या है, इंटीजर है? नहीं है, बिकॉज नॉट पॉसिबल। √2 डेसिमल नंबर है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो फिर इसके लिए ये p/q में नहीं लिख सकते। दिस इज ओनली इरेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, दिस इज अबाउट इरेशनल नंबर। तो थोड़ा भी पूरा जो भी जितना भी किया इसके दोनों मिक्स कर देंगे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर वन साइड रहेगा, इरेशनल नंबर दूसरा साइड रहेगा, क्योंकि वो अलग है, ये फैमिली से अलग है, नंबर सिस्टम का स्पेशल है। तो ये लेकिन रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, फाइनली रैशनल नंबर्स आएंगे। ओके, ये सबको मिक्स करेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे, तो फाइनली एक और बिगेस्ट नंबर सिस्टम आएगा, दैट इज रियल नंबर। ओके, इट्स अ यूनिवर्स ऑफ नंबर्स, बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है। सो इसके ऊपर भी एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको हायर क्लास में आएगा, लेकिन टिल 10th स्टैंडर्ड सो वी हैव रियल नंबर्स। Okay, let us understand small concept about real numbers. What is that? कि real numbers can be written the combination of rational and irrational number, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको थोड़ा वेन डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम, इट इज डिस्कवर्ड बाय द पर्सन मैथमेटिशियन वेन। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वेन डायग्राम है, टोटल है, बिगेस्ट नंबर सिस्टम, ये यहां पे आया रियल नंबर्स, इसमें 2 नंबर्स आएंगे, फर्स्ट वन ये है रैशनल नंबर, सेकेंड वन ये है इरैशनल नंबर। देखो ये अलग है, राइट, ये वाला है रैशनल नंबर, पूरा Q से डिनोट करते हैं, ये वाला इरैशनल नंबर, ये दोनों को मिक्स किया तो क्या मिलेगा, रियल नंबर्स। और रैशनल नंबर में और कौन सा आएगा, यस, कौन सा आएगा बताओ, इंटीजर्स, ये आया इंटीजर्स, z से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर एक और आएगा, नहीं 2 और आएंगे इसमें, ये है होल नंबर, देन इसके अंदर एक और आएगा, लास्ट वन बेसिक नंबर सिस्टम, दैट इज नेचुरल नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर सिस्टम ऑफ द टोटल नंबर्स, N, W, Z, Q and I, natural number, whole number, integers, rational number and irrational number, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर है। देखो इससे आपको क्या समझेगा, ये वेन डायग्राम का क्यों वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल है। ये देखो, रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एंड इरैशनल, एंड रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, एंड इंटीजर इंक्लूड्स whole number and natural number, and whole number includes natural number। तो इसका मतलब है all natural numbers are also rational numbers, all whole numbers are also rational numbers, all integers are also rational numbers, but converse is not true। मतलब क्या इसके converse not true means क्या है, what is the meaning? तो ये है, अगर rational number लेंगे तो वो natural number नहीं हो सकता है, और इंटीजर लेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर रहेगा तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। फॉर मोर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस एंड मोर मैथ्स फन वीडियोस, यू जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या ज्योति अकेडमी, वेयर knowledge gives more value।